हेलो 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 एवरीबॉडी। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम ढूंढ रहे हो और वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आप सही चैनल पे आए हैं। वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लैनेट वेल्थ यूट्यूब चैनल एंड पॉडकास्ट चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, आज के एपिसोड में हम ये बात करने वाले हैं कि न्यू पेंशन सिस्टम क्या है और एज एन इन्वेस्टर आप अपनी एंटायर जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें ये एनपीएस प्रोडक्ट को कैसे फिट कर पाओगे, how you should go about using NPS as a one of the pension planning tool। उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। I am Brijesh Parikh, father of two lovely kids, husband to a loving woman. I am an edupreneur, now turned into a wealth coach. And I'm on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially worry-free life and achieve financial freedom during their life। तो मेरे इसी मिशन को अचीव करने के लिए ये जो एजुकेशन इनिशिएटिव मैंने ले रखा है उसमें एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और चलिए बात करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि एनपीएस बेसिकली है क्या एंड हाउ यू कैन यूज इट एज अ पेंशन प्लानिंग एंड वेल्थ क्रिएशन टूल। राइट, तो ये बेसिकली ये जो प्रेजेंटेशन आज मैंने देने जा रहा हूँ दैट इज फॉर एजुकेशन पर्पज। फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप पीएफआरडीए की साइट पे जो न्यू पेंशन के ऑफर डॉक्यूमेंट उसको आप प्लीज रिफर करें। So what is new pension scheme? New pension scheme क्या है? New pension scheme is a defined contribution based pension system launched by Government of India with an aim to provide old age security coverage and pension for all citizens of India। ये बेसिकली पहले जो था एनपीएस आने से पहले की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि आप डिफाइंड बेनिफिट वाली पेंशन स्कीम में, so benefits were defined and the entire financial burden of this benefit was borne by your employer, either central government or state government, but वो सस्टेनेबल नहीं था न्यू इकोनॉमी के लिए। सो गवर्नमेंट केम आउट विद दिस न्यू एनपीएस जहाँ पे आपकी कंट्रीब्यूशन डिफाइन है और आपकी जो बेनिफिट है वो डिटरमाइन करेगी आपकी मार्केट की रिटर्न के हिसाब से। The scheme provides investor an option to avail reasonable market-based returns over a long period of time। Periodic contribution will get invested through EFRDA appointed pension fund managers in a combination of investment avenues as per the choice of the investor। ये क्या है वो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं इस वीडियो में। So why NPS is a smart choice? आपके लिए पेंशन प्लानिंग के लिए स्मार्ट चॉइस क्यों है? So it helps you to create a pension corpus। NPS is designed as a voluntary saving scheme with restricted withdrawal options। This ensures that the investor can set aside savings during his working life to create a pension corpus for their retirement life। There are tax benefits given by the government। Individual contribution मतलब if you are investing as an individual investor, investment in NPS made by an individual is tax exemption under section 80 CC D1 read with section 80 CC of the Income Tax Act 1961 up to rupees 50,000। राइट, 50,000 तक आप अपनी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो ले सकते हैं और फिर एटीसी के तहत तो आप उसकी एडमिशन ले ही सकते हैं। along with that employers contribution मतलब आपके एम्प्लॉयर ने अगर कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो employers contribution to NPS will not be included in the rupees 1 lakh limit exemption that employee can avail under section 80C। Sorry, 1.5 lakh limit that employee can avail under section 80C and thereby allowed to save extra tax on this amount under section 80 D2 of the Income Tax Act 1961। तो मतलब एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है तो उसको भी टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है अगर आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है आपके सीटीसी के तहत। तो वो आपको 10% आपकी जो सैलरी है उसके 10% तक की आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। तो मार्केट बेस्ड रिटर्न ये आपको मार्केट बेस्ड रिटर्न ऑफर करती है क्योंकि ये मार्केट में इन्वेस्ट करती है। सो एनपीएस ऑफर्स द इन्वेस्टर एन ऑप्शन टू डिसाइड देयर एसेट एलोकेशन बिटवीन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज with up to 50% exposure to equity investment, which is now increased to up to 75% exposure। Right, so now you can go up to 75% into equity as well। ये ऑप्शंस आपके लिए मार्केट बेस्ड रिटर्न के तौर पे एनपीएस में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। All citizens of India, resident, non-resident, who are between 18 to 16 years of age and have complied with KYC norms as detailed in the subscriber registration form can avail the NPS facility।
there are very low fund management charges. All charges levied under NPS are defined and regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority, which is known as PFRDA, to ensure reasonability of charges. राइट सो टिपिकली ये अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने चाहोगे उससे कम मैनेजमेंट चार्जेस में एनपीएस इज अवेलेबल promoted and regulated by the government of India. So NPS is a government of India initiative to provide old age security to all citizens of India. The details of the product are defined and regulated by Pension Fund Development and Regulatory Authority of India. वो उसको regulate करती है. Portability across jobs and locations. मतलब you can operate your account from anywhere in the country, even if you change your city, your job, और योर पेंशन फंड मैनेजर जो हम आगे डिस्कस करने वाले पेंशन फंड मैनेजर्स क्या अवेलेबल है प्रोफेशनल रिकॉर्ड कीपिंग एंड फंड मैनेजमेंट एंड नो एंट्री एंड एग्जिट so these are the unique feature specifically designed for masses of India, right? So what are the key stakeholder of the new pension system? सबसे बड़ा जो रेगुलेटर है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ये रेगुलेट करती है पेंशन सिस्टम को इंडिया में which regulates even NPS as well. Then there would be a point of presence POP. Those would be service providers appointed by PFRDA for accepting applications and remittances. मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करने के लिए और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए point of presence are available, which can be offline and online. Both modes are available. And then there is a central record keeping agency. Right. So NSDL is appointed as to act as a central record keeping agency. The main functions and responsibilities of this CRA, that is Central Record Keeping Agency, includes issuance of pension account number प्रान बोला जाता है जिसको and service record keeping and customer, right? So ये सारी record keeping जो आपकी transaction की record keeping होती है वो CRA करती है जो at present it is NSDL, right? So these are the stakeholders. अगर stakeholder में आगे देखें तो annuity service providers are also stakeholder क्योंकि there is a provision in the NPS कि आपको 40% of your maturity amount needs to be invested into the annuity जहाँ पे आपको annuity में से monthly yearly pension मिले. So ASP would be responsible for delivering regular monthly pensions. You will be required to purchase annuity from any of the ASP prescribed by PFRDA on attaining the retirement age. It is mandatory. ये एक limitation है. It is mandatory कि आपको 40% ऑफ योर मेच्योरिटी अमाउंट आपको रिटायरमेंट एज के टाइम पे आपको कंपल्सरीली पीएफआरडीए की जो प्रिस्क्राइब की गई एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स है उनसे एन्युटी लेना आवश्यक है, राइट? तो आपको जब भी अगर ये इम्पैक्ट क्या करेगी ये प्रोविजन इम्पैक्ट ये करती है कि यू आर नॉट एट योर लिबर्टी टू आपकी जो एसेट एलोकेशन है रिटायरमेंट के टाइम पे आप उसको अच्छे से कर पाने की लिबर्टी आपके पास नहीं होगी. बट हैविंग सेड दैट एन्युटी इज अ डेट इन्वेस्टमेंट और किसी भी रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग में डेट इन्वेस्टमेंट्स आर सपोज टू बी देयर. तो वो अगर 40% है तो डेट मेक सेंस कि आप उसको मैनेज कर पाओ, बाकी के 60% आपको फ्रीडम दे रहा है. सो द माइनस इज 100% लिबर्टी नहीं है, बट द बेस्ट पार्ट इज किसी भी पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग में डेट कंपोनेंट रहने वाला है और एएसपी इज प्राइमरीली डेट इन्वेस्टमेंट, तो वो आपको 40% ही है तो मतलब 60% इज विच विल गिव यू दी liberty wherever you want to invest to manage your post-retirement pensions, right? So pension funds and pension fund managers. So there are 6 pension funds appointed by PFRDA जो आप जहाँ पे जिसमें आप जिसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो और वो आपकी फंड को मैनेज करेंगे. So at present Kotak Mahindra Pension Fund Limited, ICICI Prudential Pension Funds Limited, UTI Retirement Solutions Limited, Reliance Capital Pension Funds Limited, which is now renamed as Nippen SBI Pension Funds Private Limited and IDFC Pension Fund Management Company Limited. So these are the pension fund managers appointed by PFRDA. तो आप उसमें से किसी एक फंड मैनेजमेंट को या 2 फंड मैनेजमेंट को आप अपनी फंड मैनेज करने की लिबर्टी दे सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो. So how does NPS work? अकाउंट ओपनिंग फेज. तो सबसे पहला फेज होता है वो अकाउंट ओपनिंग होता है. So on opening of account with the help of point of presence, you will be allotted a unique permanent retirement account number PRAN. PRAN will provide access to 2 personal accounts. Tier 1 pension account, this is main pension account, offers tax exemptions, and Tier 1 is non-withdrawable. Right? वो आप withdraw नहीं कर सकते हो. There are certain limitations for withdrawable. And there is another Tier 2 account which is a savings account kind of thing. This is voluntary savings facility, offers withdrawal facility
एंड नो टैक्स बेनिफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो अगर आप टायर 2 में पैसे डालते हो तो टैक्स बेनिफिट नहीं है, टायर 1 में पैसे डालते हो तभी आपको टैक्स बेनिफिट है। सो इन एसेंस जो स्पिरिट है ये प्रोविजन की वो ये है कि यू आर ग्रांटेड टैक्स बेनिफिट ओनली इफ यू इन्वेस्ट फॉर योर रिटायरमेंट। अगर आप उसको रिटर्न के तौर पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको वो टैक्स बेनिफिट नहीं दे रहा, अगर आप उसको ध्यान से समझे तो। सो हाउ डज एनपीएस वर्क? इन्वेस्टमेंट फेज, अकाउंट खुल गया, अभी आप इन्वेस्टमेंट फेज में कैसे काम करते हैं? सो एनपीएस ऑफर्स टू अप्रोचेस टू इन्वेस्ट योर मनी। Active choices, individual funds. So you will have options to actively decide as to how your NPS pension wealth is to be invested in three asset classes, that is E for equity, C for corporate bond debt, and G for government security. So you may invest in one or more classes. So recently एक और asset class इसमें ऐड कर दिया गया है which is an A, which is an alternative investment. तो आप उसको भी एक कंपोनेंट डाल सकते हो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट को यूज करते हुए आप अपनी कर सकते हो। तो नाउ देयर आर 4 एसेट क्लासेस अवेलेबल, E for equity, C for corporate bond, G for government security, and A for alternative investment. Right. So subscriber can choose to invest entire pension wealth in C or G asset classes and up to maximum of 75% in asset class। यहाँ पे presentation में आपको 50% लिखा गया है, but mark my words, now it has been increased to 75% as equity, right? So you need to select your asset combination based on your asset allocation। अगर आपकी asset allocation 75% equity है तो you can put 75% your contribution toward NPS to equity and 25% into government security if you may choose to opt for like that। So it gives you now liberty। आप उसको एक्टिव चॉइस में जाओगे तो आपको लिबर्टी मिलेगी कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है वो आप तय कर पाओ। देन देयर इज अ ऑटो चॉइस व्हिच इज अ लाइफ साइकिल फंड। मतलब देयर इज अ लाइफ साइकिल प्रोवाइडेड इन्वेस्टमेंट choices available। So in case you are unwilling to exercise any choice as regard to asset allocation, your funds will be invested in accordance with auto choice। So what is auto choice? The auto choice till the 36 years of age, the auto choice will entail investment of 50% of pension wealth into E class, 30% into C class, and 20% into G class. And from age 36 onwards, the weight in E and C asset class will decrease annually, and the weight in G class will increase annually till it reaches 10% E, 10% in C, and 80% in G class at the age of 55%. So it gets automatically reduced, as I mentioned, right? So this is how you will the NPS would work while you are investing, right? Now how much to contribute? So tier 1 account minimum amount per contribution is rupees 500, minimum contribution per year is rupees 6,000, and non-maintenance charges that is rupees 100 per annum। And tier 2 amount की बात करें अगर तो minimum amount per contribution rupees 250, but first contribution needs to be rupees 1,000। Minimum balance at the end of the financial year needs to be rupees 2,000। Non-maintenance charges is rupees 100 per annum। So another important points to be noted for tier 2 account. Customer must have tier 1 account to apply for tier 2. So you cannot have tier 2 unless you have tier 1। Bank account details and unsigned cancelled checks from the same account are mandatory, and tier 2 account once opened cannot be closed। राइट। सो ये तीन चीजें अगर आप टीयर 2 अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं फॉर सेविंग पर्पजेस तो आपको खोलने के टाइम पे ध्यान में देनी चाहिए। सो व्हेन कैन द सब्सक्राइबर विड्रॉ? अकाउंट खुल गया, इन्वेस्ट कर दिया, बट आप कैसे कब विड्रॉ कर पाओगे? सो देयर आर सर्टेन वेस्टिंग क्राइटेरियाज ऑन अटेनिंग द रिटायरमेंट एज। मतलब आप रिटायर हो चुके हो तो आप 60% ऑफ द पेंशन वेल्थ मे बी विड्रॉन इन लमसम और इन अ फेज मैनर between retirement age to next 10 years। And as I mentioned earlier, minimum 40% of the pension wealth is to be kept invested into life annuity, right? At any time before the defined age of retirement। अगर आप defined age of retirement से पहले पैसे उठाना चाहते हो so maximum 20% of your pension wealth may be withdrawn। At least 80% of the pension wealth to be kept invested and annuitized at retirement। You will your money 80% of your money अगर आप पहले withdraw करते हो तो 80% of your money would remain invested into NPS, and रिटायरमेंट एज अटेन होने के टाइम पे वो अपने आप एन्युटी में चली जाएगी। Death due to retire any cause, so nominee may receive 100% of NPS pension wealth। If nominee wishes to continue, he or she shall have to subscribe to the NPS individually। So these are the withdrawal time पे आप कैसे उसको मैनेज करें वो आपने
समझा गया। प्रोबेबल एन्युइटी ऑप्शंस, एन्युइटी ऑप्शंस क्या है? एन्युइटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, तो मतलब आपने जो एन्युइटी मिल रही है बट एट द एंड ऑफ द टेन्योर वो आपको परचेज प्राइस वापस मिल जाएगी। एन्युइटी विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, तो मतलब आप एन्युइटी ले रहे हो बट आपको एंड में परचेज प्राइस वापस नहीं मिलने वाली है। लाइफ एन्युइटी गारंटीड फॉर 5, 10, 15 years एंड लाइफ देयर आफ्टर। So these are the three options available. अगर आप एन्युइटी प्रोवाइडर को पसंद करते हो तो वो आपको 3 ऑप्शन देता है। Now what is annuity? So annuity is nothing but kind of a pension. आप पैसे डालते हो एन्युइटी प्रोवाइडर में, वो उसमें से रिटर्न जनरेट करता है, आपको प्री कमिटेड पेंशन देता है, और साथ में ये तीनों जिस तरीके के ऑप्शन आपने सेलेक्ट किए उसके बेस पे वो आपको परचेज प्राइस भी रिटर्न करते हैं, नहीं भी करते हैं। सो ये सारा ऑप्शन है आपके पास एन्युइटी प्रोवाइडर को सिलेक्ट करने के टाइम। चार्जेस क्या एप्लीकेबल है पेंशन फंड में? तो सीआरए क्या चार्ज करता है? तो सीआरए चार्ज करता है जब आपकी प्राण खुलती है तब 50 रुपए चार्ज करता है, आपकी प्राण को मेंटेन करने के लिए सालाना 280 रुपीज चार्ज करता है, और पर ट्रांजेक्शन वो 6 रुपए चार्ज करता है। तो ये कैसे चार्ज करता है? तो थ्रू कैंसलेशन ऑफ यूनिट्स, तो आपके यूनिट उतने कम हो जाते हैं, राइट। पॉइंट ऑफ प्रेजेंट कैसे चार्ज करता है? सो पॉइंट ऑफ प्रेजेंट चार्ज करता है इनिशियल सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 40 रुपीज, और बाद के कुछ भी ट्रांजेक्शन के टाइम पे 20 रुपीज, और वो आपसे अपफ्रंट कलेक्ट कर लेते हैं। ट्रस्टी बैंक क्या चार्ज करती है? तो पर ट्रांजेक्शन अगर आरबीआई लोकेशन से अगर शुरू हुई है तो 0, बट अगर वो नॉन आरबीआई लोकेशन से शुरू हुई है तो वो 15 रुपए चार्ज करती है, राइट। और वो भी एनएबी डिडक्शन से चार्ज करती है। जो आपकी कस्टोडियन सर्विसेज देता है तो वो कस्टोडियन कैसे चार्ज करता है? तो वो एसेट सर्विसिंग चार्जेस करता है विच इज 0.0075% per annum for electronic segment and 0.05% per annum for physical segment। और फंड मैनेजर कैसे चार्ज करता है? तो फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी चार्ज करता है, वो 0.0009% पर एनम चार्ज करता है पेंशन फंड मैनेजर। So these are the various charges applicable to you while you are using NPS as a pension planning product. Now let us compare other pension planning product जो आपको टैक्स सेविंग भी दे रही है और आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेजर 3 अवेलेबल है, जैसे कि पीपीएफ भी आप यूज कर सकते हो, एनपीएस भी यूज कर सकते हो, और ईएलएसएस भी यूज कर सकते हो, राइट। सो यू कैन इम्प्लीमेंट, आई वुड कॉल इट दिस काइंड ऑफ चॉइसेस, क्योंकि एसेट एलोकेशन को लेके चले तो यू हैव 2 चॉइसेस, पीपीएफ प्लस ईएलएसएस वर्सेस एनपीएस, क्योंकि पीपीएफ इज अ डेट कंपोनेंट, ईएलएसएस इज इक्विटी कंपोनेंट, whereas एनपीएस आपको डेट इक्विटी की चॉइस देती है। So in principle you have 2 options। अगर एसेट एलोकेशन परसेप्शन से आप देखो या तो एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो पीपीएफ प्लस ईएलएसएस को यूज करें या एनपीएस को यूज करें, राइट। तो पीपीएफ कंजर्वेटिव, दैट इज रिस्क एवर्स रिटर्न, मतलब डेट इन्वेस्टमेंट है, एनपीएस बैलेंस है, और ईएलएसएस एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए है। कौन ओपन कर सकता है? पीपीएफ इंडियन रेसिडेंट कर सकता है, एनपीएस एनआरआई और रेसिडेंट दोनों कर सकते हैं, और ईएलएसएस रेसिडेंट और एनआरआई दोनों कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड क्या है? तो पीपीएफ 15 साल की लॉकिंग लेते आता है, एनपीएस रिटायरमेंट एज 60 इयर्स की लॉकिंग लेते आता है, और ईएलएसएस है वो 3 साल की लॉकिंग लेते आता है। अगर एसआईपी है तो 6 साल की, अगर आपकी लास्ट एसआईपी खत्म हुई उस टाइम पे लेके। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है? पीपीएफ में आप 500 डाल सकते हो, एनपीएस में भी 500 डाल सकते हो, और ईएलएसएस में 500 का डाल सकते हो। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में 1.50 लाख, देयर इज नो अपर कैप इन एनपीएस। यस, आपको टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर अपर केस, वो आप यूज कर सकते हो आपकी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हो तो। ईएलएस में देयर इज नो अपर कैप, राइट। टैक्स सेविंग पीपीएफ में अप टू 1.50 लाख पर फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 80C, NPS में up to 1.50 lakh per financial year under 80C and additional 50,000 under section 80CCD. Whereas in the case of ELSS, you have only 1.50 lakh per financial year under section 80C. So rate of return PPF के guaranteed होते हैं, जो normally 7 से 8.5 के बीच में hover करते हैं, और it has a reducing trend. NPS no assured return because exposure to the market is up to 75%, मतलब वो मार्केट तय करता है, और ELSS के केस में भी मार्केट एक्सपोजर 100% होने की वजह से वो मार्केट ही रिटर्न तय करता है, राइट। विड्रॉल्स PPF partial withdrawals are allowed from the 7th year, 1 withdrawal per year. NPS 20% if exit before 60 years, else 60% on retirement age of 60 years.
ELSS premature withdrawals within 3 years are not allowed. Loans, PPF में it is allowed from the 3rd year onwards, right, or from the date of account opening, 3rd year to 6th year. NPS the loans are not allowed, ELSS loans are not allowed. इम्यूनिटी फॉर्म कोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप कहीं पे दिक्कत है, आपको फाइनेंशियल कोई केसेस चल रहे तो पीपीएफ में पीपीएफ अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड विद एनी डिग्री ऑफ कोर्ट, एनपीएस अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड विद एनी डिग्री ऑफ कोर्ट, एंड एलएसएस में नो सच इम्यूनिटी। एसेट एलोकेशन 100% इन गवर्नमेंट बॉन्ड, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट पीपीएफ को अगर आप देखें तो एनपीएस केस में अप टू 75% आप चूज करते हो, अप टू 75% आप इक्विटी में चूज करते हो तो वो इक्विटी में जाती है, एंड रेस्ट इनटू गिल्ट फंड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, वो आपके पास चॉइस है। ईएलएसएस में 100% इनटू इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, ग्रोथ ऑन डिविडेंड ऑप्शन। रिस्कोमीटर पे देखें तो पीपीएफ इज कंप्लीटली सेफ, एनपीएस इज मॉडरेटली सेफ, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने इक्विटी डेट को सिलेक्ट किया हुआ है। और ईएलएसएस इज हाई रिस्क, मतलब हाईली वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट है। टैक्स इम्प्लीकेशंस, पीपीएफ के सारे रिटर्न टैक्स एग्जेम्प्टेड है, एनपीएस के 40% एन्युइटी इज टैक्सेबल, whereas 60% ऑर्डिनरी मैच्योरिटी इज नॉट टैक्सेबल, एंड ईएलएसएस के 1 लाख रुपए तक की आपकी जो ईएलएसएस से रिटर्न है वो साल में 1 लाख तक की आपको टैक्स एग्जेम्प्टेड है। सो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज कि आपको लिक्विडिटी, लिबर्टी, वो सारी चीजें चाहिए तो आप 1.50 लाख की जो ईटीसी की इन्वेस्टमेंट है उसमें आप ईएलएसएस और पीपीएफ की कॉम्बिनेशन को यूज करें, और जो एडिशनल 50,000 आपको एनपीएस दे रहा है वहां पे आप अपनी एसेट एलोकेशन के हिसाब से चूज करके वो 50,000 एनपीएस में डालें, एंड यूज ऑल दीज 3 प्रोडक्ट फॉर योर पेंशन प्लानिंग, क्योंकि ये आपको टैक्स एडवांटेज भी देती है और आपकी एसेट एलोकेशन को इम्प्लीमेंट करने की लिबर्टी भी देती है। तो ये तीनों प्रोडक्ट को जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप 1.50 रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर आप 1.50 एटीसी की लिमिट देखें वहां पे आप पीपीएफ और ईएलएसएस की कॉम्बिनेशन यूज करें, और एडिशनल जो एटीसीसीडी बता रहा है, एडिशनल आपको बेनिफिट दे रहा है, वहां पे आप एनपीएस यूज करें, और एनपीएस की जो चॉइस है उसको एक्टिव लेके आप अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से इक्विटी और डेट को आप ऑप्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी एसेट एलोकेशन मेंटेन हो और आपको तीनों प्रोडक्ट की बेनिफिट भी मिले, एनपीएस जो कि लो कॉस्ट प्रोडक्ट है वो भी मिले, और ईएलएसएस और पीपीएफ की कॉम्बिनेशन आपको लिक्विडिटी रिलेटिवली हायर दे रही है। देयर इज नो लॉक इन पीरियड, मतलब लिमिटेड लॉक इन पीरियड इज देयर, सो इट ऑफर्स यू एवरीथिंग, एसेट एलोकेशन, हायर रिटर्न्स, एग्रेसिव ग्रोथ एंड लिक्विडिटी। तीनों चीजों को आप इस तरीके से तीनों प्रोडक्ट को यूज करते हुए आप अपनी पेंशन प्लानिंग को कर सकते हैं। सो आई होप ये जो वीडियो मैंने आपको एनपीएस इंट्रोडक्शन की है और आपकी पेंशन प्लानिंग के बारे में मैंने रिकॉर्ड की है, वो आपकी पेंशन प्लानिंग को और इफेक्टिव बनाएगी और आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। इफ यू विश टू फोकस ऑन कीपिंग एंड ग्रोइंग योर मनी, तो आप इस मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसकी बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियो जब मैं अपग्रेड करूंगा सो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं planetwealth.in पे, वीडियोस भी मैंने वहां अपडेट किए हुए हैं। आप एडिशनल जो थर्ड पार्टी एक अच्छी सी साइट है moneycraft.com, वहां पे जाके भी अपनी पर्सनल फाइनेंस नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं प्लेनेट वेल्थ फेसबुक के ऊपर, या तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फाइनेंशियल वेलबींग करके ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए, आई विल अप्रूव योर रिक्वेस्ट। और सबसे बढ़िया तरीका, ये सारे चैनल में जब भी अपडेट आता है तो आई एम मेंटेनिंग व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप, फाइनेंशियल लिटरेसी ग्रुप, तो आप उसमें आप उससे जुड़ जाइए। व्हाट यू नीड टू डू इज आपको 9328190022 नंबर को आपको प्लेनेट वेल्थ करके सेव करना है, और फिर मुझे ऐड मी अपना नाम डाल के व्हाट्सएप उस नंबर पे डाल दीजिए। आपको मैं अपने फाइनेंशियल ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल दूंगा, एंड यू विल कीप ऑन अपडेट अबाउट दिस काइंड ऑफ एजुकेशनल मटेरियल जो आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को आसान बनाने में हेल्प करेगा। नंबर फिर से बता रहा हूँ आपको, 9328190022, राइट। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो जो मैंने एनपीएस को इंट्रोडक्शन करने के लिए दी थी और आपकी पेंशन प्लानिंग के लिए दी थी, वो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी। May God shower abundant wealth to you, and may you achieve financial freedom in your life. Thank you for watching this video. Thank you for listening to this podcast, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।